السلام علیکم، کنفیوز ٹاک میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں کراچی سے آئے دو پولیٹیکل ورکرز، جن میں سے ایک کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے اور دوسرے کا تعلق ہے ایم کیو ایم سے، اور ان کے علاوہ دو گیٹ کریشرز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھو سر تسی سانو گیٹ کریشر ہی کہہ دیتا جی۔ انہوں نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ اچھا میں تو تمہیں اس سے بھی کوئی بدتر چیز کہوں۔ کی سانو کہو گے مطلب لگڑ بگڑ کہہ دیو گے تسی؟ بگڑ بگڑ مائنڈ کرے گا۔ لگڑ بگڑ مائنڈ کرے گا ساڈے تو؟ وہ شیر کولوں بھی کھو کے دوڑ جاندا جی۔ نہیں، اگر وہ بہت زیادہ ہو نا ہاں جی، تو شیر بیچارہ مریل سا ہو تب وہ چھینتے ہیں۔ ہمیں تو نہیں، تگڑا شیر ایک ہو، لگڑ بگڑ جتنے مرضی ہو جائیں، شیر شیر ہی ہوتا ہے۔ لیکن وہ انتخابی شیر کی بات نہیں ہو رہی، اصلی شیر۔ اصلی شیر کلا نہ ہوئے، کلہ بھی ہوئے تو خیر ہے، کلے نو تو پیندے نے سارے۔ نہیں تو بیمار ہوگا، زخمی ہوگا، بھوکا ہوگا۔ اچھا جناب، پی ٹی آئی سے تعلق ہے آپ کا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ سندھ میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اگر تو آفتاب بھائی الیکشن صاف شفاف ہو گئے پھر تو آپ کا یہ سوال ریلیونٹ ہے۔ اچھا جی، آپ کا تعلق ہے ایم کیو ایم سے، جی بھیا اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کو الیکشن صاف اور شفاف ہوتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جی، الیکشن بظاہر تو صاف شفاف ہوتے نظر نہیں آ رہے، لیکن بہرحال اللہ کرے ہو جائیں۔ الیکشن ہوں گے صحیح؟ آپ نے الطاف بھائی کی گفتگو سنی؟ الیکشن کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ میں نے الطاف بھائی کا انٹرویو سنا ہے، بجات سعید نے پچھلے دنوں کیا ہے، ان کا بڑا تگڑا انٹرویو تھا، بڑا عمدہ انٹرویو تھا۔ اور الطاف بھائی ہمیشہ بڑی پکی تگڑی پیڑھی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے، وہ مظلوموں کا ساتھی ہے، بالکل عمران خان کی طرح۔ آپ دیکھ لیں، اور آج کل تو بہت ہی مظلوم ہے بیچارہ، کیا کریں، پہلے نہیں تھا مگر آج کل میں دیکھ لیں بہت ہی بیچارہ مظلوم ہوا۔ نہیں، پہلے کیا تھا؟ دیکھیں وہ بھی اسی ٹرک پر چڑھ کر آیا تھا جس پر باقی سیاستدان آتے ہیں، بھائی وہ کوئی الگ سے نہیں آیا تھا۔ اب اس بیچارے کی قسمت ہی خراب تھی، غلط ٹائم پر ٹھیک بات کر بیٹھا، یار لوگ ہضم ہی نہیں کر پائے ان کی بات۔ اب دیکھ لیجئے بیچارہ کس حال میں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں جناب؟ دیکھیں جی، انہوں نے تو ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا اور ان کا تو نعرہ ہے میں تو سیاست میں آیا ہی مظلوموں کے لیے ہوں۔ ہیں آپ بھی کراچی سے جی؟ جی جی سر، الحمدللہ میں بھی کراچی سے ہوں۔ تو پہلے آپ ایم کیو ایم میں تھے؟ ہاں، ایک زمانہ تھا ہم بھی تھے۔ اچھا، ان کے ساتھ کوئی انتخابی لاگ کے امکانات ہیں؟ دیکھیں سیاست میں ہر چیز ممکن ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ ہمارا کچھ الحاق ہو جائے ان کے ساتھ۔ کیوں جناب، آپ کیا کہتے ہیں، کوئی انتخابی گٹھ جوڑ ہو سکتا ہے آپ کا؟ دیکھیں جی بالکل کلیئر ہے، اگر بھائی کا حکم ہوا تو ہم بالکل کریں گے۔ ہم تو چاہتے ہی مفاہمت کی پالیسی پر ہیں، ہمیشہ سے ہم لوگ یہی کرتے آئے ہیں۔ مینوں تو لگتا جنت چ شو ہو رہا ہے۔ کیوں جنت میں کیسے ہو رہے ہیں؟ اینی نفیس گفتگو ہون ڈئی ہے سر۔ اچھا چلیں، وہ پڑھیا لکھیا بندہ انہوں نے پہلی بار تو کوئی اردو والا بندہ لبے ہے، انہوں نے تو گل ہی نہیں ٹوٹن ڈئی۔ تمہیں تکلیف ہے اس سے؟ سر تسی اردو، میرا مطلب پڑھے اچھا، اردو نہیں ہوتا، اردو کیا ہوتا ہے؟ اس میں ڈے کدھر سے آ گئی؟ سر وہ ساڈے والے پاسے اردو ہی چلدا وا، اردو۔ اردو۔ اچھا جی، بڑی دلچسپ بات ہو رہی ہے کہ اگر الطاف بھائی نے چاہا تو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا الحاق ہو سکتا ہے۔ اور چلو بھائی تے چاہے گا جی، ابے نے نہ چاہیا تو کی کرو گے تسی؟ کیا مطلب؟ او جی وہ ہی نہیں چاہن گے تو پھر اچھا، تم زومانی فکر ہے نا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ سانوں بھی کوئی بولن دا حق دو، اسی اگر تبصرہ نہیں کرنا تو اسی اتنے مٹر چھلن آئے۔ اچھا، آج تمہارا یکا یکی ایکسنٹ، تمہارا لہجہ کیوں چینج ہو گیا؟ کل تو تم مولا جٹ نوری نت تھے، وہ کیا تھا، کالے خان اور پرنالے خان؟ او سر کل دی گل سی، چھڑ دیو انہوں، گفتگو ہی اتنی اچھی ہو رہی ہے، اسی تے بھول گئے اسی آئے کدھر آ۔ اجازت ہے اب ہم بات کر لیں؟ جی جی اجازت۔ اچھا جی، ملک کی معیشت جس طرف جا رہی ہے، اتوں ہی شروع ہوئے نے۔ کیوں بھیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ معیشت کا کیا کریں بھائی، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا معیشت کہاں جا رہی ہے۔ اب ہم کس کو دیکھیں، پیسوں کو دیکھیں، لوگ لے گئے۔ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। یار میں معذرت خواہ ہوں آپ سے۔ بھائی معیشت کا کیا کریں، کس بات کا لیں، سارا بیڑا غرق کر دیا، پیٹرول دیکھیں کہاں پہنچ گیا، گیس ہے نہیں ملک کے اندر، لوگوں کا بھوک کے مارے برا حال ہے، بچوں کے بعد تعلیم نہیں ہے، سارے سیاست دانوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ آپ دیکھیں تو صحیح لاسٹ 3-4 سالوں میں ہوا کیا ہے، کس کس کے آگے روئیں، کس کس کے آگے گائیں، نہیں، کچھ آپ بھی شامل رہے ہیں حکومت میں، ایم کیو ایم کا بھی حصہ رہا ہے پچھلے 15 سال میں۔ ہم نے کل گزارش کی تھی، گزشتہ 15 سالوں میں 22,000 ارب روپیہ صرف کراچی پہ لگ گیا۔ اور سر جی پیسے دیے کب ہیں، ہم لوگوں کا لو یہ ڈگڈگی لو بجاتے پھرو، ہم بجا رہے ہیں، جھنڈا ہمارے سر پہ لگا دیا، کام خود کر رہے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، پیسے گھر بھائی آپ مانیں گے کندھا ہمیشہ آپ کا استعمال ہو۔ بس کیا کریں، اوپر سے آرڈر آ جاتے ہیں، ہم لوگ مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جیسا بول لو کرنا پڑے گا، کیا کریں،
भाई हम तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हैं इस वक्त कि मईशत का सत्यानाश हो गया। मईशत का बुरा हाल था तो अल्ताफ हुसैन की याद सताने लगी ना। जी। अभी अल्ताफ भाई याद आ रहे हैं तो सबको फिर उसी के पैटर्न पे चलना। रेलेवेंट हो गए, बैठे बैठे वो रेलेवेंट हो गए अल्ताफ भाई। ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕੀਆ ਸਾਰੇ ਖਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। खत ले जाके क्या करते हैं? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਡਾਕੀਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੋਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਜੇ ਵੀ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਖਤ ਪਏ। अच्छा जी, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि अल्ताफ भाई यकायक रेलेवेंट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गए। आप बताइए, आप क्या समझते हैं अल्ताफ भाई के बारे में? अल्ताफ भाई एक मंझे हुए सियासतदान है, उन्हें मातूब करार दिया गया, बहुत ख्वार किया गया और बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी उन्हें अपनी मकबूलियत की, क्योंकि आए वो भी उसी ट्रक पे चढ़कर थे जिस पर इमरान भी आया, जिस पर भुट्टो आया था, जिस पर नवाज शरीफ आया, जिस पर बीबी आई थी, जिस पर जनेजो आया, जिस पर इमरान आया, सारे के सारे इसी ट्रक के मुसाफिर थे। लेकिन जो कुर्बानियाँ और जिस तरह की अजियत अल्ताफ भाई ने काटी है, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी सियासी तारीख़ में कोई और मिसाल ऐसी होगी। और मैं उनकी बातें सुन के बहुत मुतासर हूँ। मसलन वजाहत को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि तमाम सियासतदानों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, मुल्की हालात जिस तरफ जा चुके हैं सबको कॉन्फिडेंस में लेकर बात करें, इंक्लूडिंग इमरान खान। बल्कि वो कहना शायद ये चाह रहे थे स्पेशली इमरान खान। हाँ आफ्ताब साहब, ये तो उनका कमाल है, वो हमेशा से मजलूमों का साथ देते आए हैं। जी जी, मजलूमों का साथ देते हैं, ऐसा ही है। और फिर उनकी दूसरी बात मुझे बहुत पसंद आई, जो ख़वातीन के बारे में उन्होंने कहा कि पीटीआई की ख़वातीन वर्कर्स को फिल फौर रिहा किया जाए। अच्छा, इसी बात ने मुझे प्रॉम्प्ट किया था जब मैं आपसे पूछ रहा था कि कोई इंतखाबी इल्हाक, क्योंकि भाई ने कोई ऐसा इंप्रेशन दिया है कि इवन पीटीआई के साथ भी इल्हाक करना पड़ा तो हम कर लेंगे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ तो एक कदम नहीं चल सकते, बिल्कुल ठीक है, और फजलुर रहमान के साथ तो सोच भी नहीं सकते, बनता भी यही है। और जहां तक ताल्लुक है नून लीग का, इसका तो दूर दूर तक इम्कान नहीं है। 100%। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਣ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। भाई थोड़ा सा दे दें, चपाती थोड़ी सी रह गई है, ज़्यादा नहीं है, मैं क्या मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, जितना सालन चाहिए मुझे। क्या कस्म परसी है कि सालन और रोटी का झगड़ा, वाकई आप लोगों का ये मसला तो है। सर ये सबका मसला है। नहीं, हमारा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए फिर आप उर्दू में बात करते, उर्दू में भीख मांगना बड़ा आसान होता है। क्या मतलब? एक्चुअली मैं मांगने वाला नहीं हूँ, घर में 4 दीवारी करवानी है, एक सीमेंट की बोरी चाहिए, रुपया 800 चाहिए मुझे, प्लीज इनकार मत कीजिए। रुपया 800 की कौन सी सीमेंट की बोरी मिलती है? सर थोड़ी घट ले लेंगे। पता है कितने की बोरी है? सर 11-1200 की बोरी। मैं कह रहा हूँ अब मांग के लेनी है, भावें घट भी आ जाए तो केड़ी गल। 11-1200 ਦੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਲਿਆ ਆਈ पता नहीं कब। पंजाबी में मांगे फिर क्या होता है आपके साथ? ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਾਰਡ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वो क्या करता है? ਉਹ ਬਸ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਾਰਡ ਪੜਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ तकलीफ है, ਸਾਹ ਦੀ ਕਸਰ है। ओ प्लेकार्ड्स नहीं जैसे डिस्प्ले करते हैं, उस पे अपनी सारी अर्जी लिखी होती है, उसके बाद मेरा ख्याल है वापस वसूल करते हैं। ਉਹਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। अच्छा जी, आपकी नज़र से वो ख़त, वो मरासला नुमा एक पैगाम गुजरा होगा जो इमरान खान साहब ने रिसेंटली भेजा है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਭੇਜਣਾ, ਹੋਰ ਜਿਮ ਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਭੇਜਣਾ। और कहाँ से वो बेचारा जेल में ही है और कहाँ से भेजेगा? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ नहीं बताओ ना, और क्या जमान पार्क से भेजेगा? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ है। ਤੁਸੀਂ गल क्या मतलब गल की थी? नहीं, टांग क्यों उड़ाते हैं हर बात में? मैं तो वैसे ही मैंने उनसे सवाल किया बीच में, अच्छा तुम मुबस्सिर हो, ठीक है, तुमने जवाब नहीं देना, सिर्फ तबसरा करना है। ਸਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ये आपने सवाल किया था। ਆਪ ਚੁੱਪ रहेगा। होस्ट है हमारी। ਉਹ ਸਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। वो क्यों? ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਸਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ये क्या बेहूदगी है? ਸਰ ਹੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਖੋਚਲ ਖੁੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਮੇ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮੇ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। फहीम, ਫਹੀਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੀ ਭਾਈ। इनका वीजा एक्सपायर होने में 2-2, 3-3 दिन रह गए हैं। ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। अच्छा, ये राशिद कमाल को रहने देना, दूसरे की खैर है। ਸਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਜੇ। ਤੈਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕਿੱਡਾ ਮਨੂਸ ਆ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। देखो ना, उसकी हांडी वाला याद है ना वो किस्सा कि उसकी हांडी तोड़ो बस,
हाँ जी। यार कैसे बेशर्म हो तुम। राशिद को जरूर भेजो, तुम वापस जाओगे ये यहीं रहेगा। ये मेरा साला लगता है। तुम्हें यहाँ पता चलेगा बेटा, जेड़ा बाहर नहीं नीला जा पानी जेदे च तो होना ही इन्होंने तेरे को। अबे जल्दी करो तू। कौन सा नीला जा पानी? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ Swimming ਤੁਸੀਂ pool। ਅੱਧਾ ਕੱਚਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ कच्चा कच्चा होता है, अद्धा कच्चा। ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀ ਵੀ ਚੜਦੇ तो ਹੋ कच्चा होता ही वो है जिसमें पिनियां नंगी होती। पागल तो नहीं हो क्या? ਇਹਨੇ देखा तुम कच्चे को घाघरे से तो नहीं कंफ्यूज कर रहे ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਗਰਾ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੇ ਡੋਲਾ ਵੇ ਡੋਲਾ ਵੇ ਡੋਲਾ ਵੇ ਡੋਲਾ ਮਨ ਡੋਲਾ यार ये डेफिनेटली जाएगा। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡੋਲੇ ਸ਼ੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। आप यहीं रहेंगे, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं। ये जाएंगे। ये जाएगा ये। ਉਹ ਮੈਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। जुराबें पहनोगे बच्चे, अभी तुम्हें मैंने जुराबें भी देनी है, इसको जुराबों का अभी तोहफा देना आपको है। जराबों की हिस्ट्री नहीं पता। जो इनकी जराबें पहन लेता है ना, वो खाली शो से, हाँ शो से, शो से जाता वो बस दोबारा कभी नहीं आता यहाँ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਜਰਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲਈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਫਿੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿੱਕੀਆਂ ਕਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। एक शो में भी एक बंदे ने पकड़े हुए काफ़ी सारे। मैं पूछ रहा था इसे क्यों नहीं निकाल रहे वो पता चला उसने एडवांस काफ़ी पकड़ा हुआ है। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ? नहीं तुम्हें नहीं पता, छोड़ो रहने दो। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं। वही लेटर जो इमरान खान साहब ने रिसेंटली जेल से भेजा है, उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस नहीं है? जी उसकी बड़ी अहमियत है, बेपनाह अहमियत है। ठीक। स्पेशली जो बात उन्होंने IMF से मुताल्लिक की है। यस, सब वो क्या बात है? उन्होंने कहा है कि मुझसे रब्ता किया था IMF ने, जी। आशीर्वाद लेने किया था ना जी। हम इस प्रोग्राम को जारी रखने लगे हैं, लेकिन हम तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। वो कहते हैं आप कोऑपरेट करेंगे, तो इस सेट कि मैंने मशरूत कोऑपरेशन का इजहार किया था जी हाँ। कि अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा देते हैं तो फिर मेरी कोऑपरेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब ये है कैच 22 पोजीशन। इमरान खान भी तो बहरहाल मशक़ सुखन से सियासत सीख गए हैं। बिल्कुल सीख गए भाई, ऐसी वैसी सियासत। देखिए ना कि एंड टाइम पे वो ये कह रहे हैं कि अगर ये नहीं ना करोगे तो खेलने फिर मैं भी नहीं दूंगा। और IMF इस वक्त ब्लड लाइन है, तो आपको फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना पड़ेगा। चलो जितने जोगा है करवाओ तो सही, ये जो कुछ कर रहे हो आप, तो आपको फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना पड़ेगा। करवाना तो पड़ेगा, लेकिन इम्कान कोई नजर नहीं आ रहा। ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। भाई वही बोलेंगे जो हकीकत है। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਭਰਾਉਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ और ਜਿਹੜਾ ਭਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ हमारे भाई 200 रुपया खुद में से भी डालो, कुछ तो डालो, आपने दुकानदारी डाली हुई है, इसमें कम से कम थोड़े बहुत तो पैसे खुद डाला करो। अच्छा, फैसलाबादी उर्दू accent में कितना अजीब लग रहा है। अभी कभी दुकानदारी आ रही है। दुकानदारी यार, यानी नस्तालीक उर्दू बोलते हुए दुकानदारी। आफ्ताब भाई एक बात बताइए, जी जी जी। ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। यार बात पूछने दो। सर ये क्या आपने भांड बिठा रखे हैं? चले छोड़े, मेहमान आए हुए हैं, चंद दिन के चंद घंटों के मेहमान। ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ? ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਪਰ ਬਈ। ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਮੈਨ ਹੀ ਨਵੀਦ ਵਫਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੈਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा ये जो लागर और मुर्दार मईशत है, हम इससे निकलेंगे भी या नहीं? बहुत मुश्किल है, बेपनाह मुश्किल है जो हालात है ना इस वक्त। ओहो, मैं तो कहता हूं आफ्ताब भाई अब भी चांस है, बल्कि बड़ा गोल्डन चांस है। यानी इसका जवाब दे दिया खान साहब ने। वो मरासला पढ़े तो सही जरा एक दफा। हाँ, उसमें है वाकई ये बड़े इख्तसार से, लेकिन बड़ी जामियत से ये फिक्रा है कि इंतहाई आसान है, साफ शफाफ इलेक्शन करवाओ, तुम्हारी मईशत ठीक हो जाएगी। जाहिर है जो नई हुकूमत आएगी वो मामलात को फास्ट मोड में डाल देगी, उसे काम करना आता होगा ना, वो करेगी। ये जो साफ और शफाफ इलेक्शन आप बोल रहे हैं, ये कराएगा कौन? इसके बगैर चारा कोई नहीं है भाईजान। इसी को तो कह रहे हैं कैच 22 पोजीशन है कि करवाओ तब भी प्रॉब्लम, ना करवाओ तब भी प्रॉब्लम। बिल्कुल। लेकिन सर प्रॉब्लम है क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हाँ जी, ज़्यादा ये होगा कि PTI जीत जाएगी और क्या। यस, यही तो। लेकिन इमरान का एतबार नहीं करता कोई, इस्टेब्लिशमेंट एतबार नहीं करती। उसकी जो परसेप्शन है ना इमरान की, वो एक मुंतकम मिजाज शख्स की है
जो माफ़ नहीं करता। जी वो कहता था ना मैं इन्हें रुलाऊंगा, हम बड़ा कहा करते थे एक हद तक रुलाना, इससे ज़्यादा ना रुलाना। बस ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी का बाजू इतना मरोड़ें कि वो टूट ही जाए। तो इमरान के अंदर है ना ये सिलसिला, वो सारी की सारी तब्दीली अपनी पहली स्टेंट में लाना चाहता था। ऐसा मुमकिन नहीं है। 76 साल की खराबी, उसे कम से कम 10 साल तो दो ना यार। तुम नहीं होगे कोई और आ जाएगा। तुम्हारा काम है एक ग्रूव बना दो, एक फर्मा बना दो, जो भी आएगा उस पर अमल करेगा। अव्वल तो अगर तुम डिलीवर करोगे तो तुम ही आओगे, नेक्स्ट टाइम भी तुम ही आओगे। लेकिन जिस तरह से इमरान आया था उसका अंजाम यही होना था। शहबाज शरीफ वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या इम्कान है? ना जी ना, शहबाज शरीफ तो क्या कोई भी आ जाए, अगर हमारी सपोर्ट है तो फिर जीतेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन बात है। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब आप भी दीजिए। जी बिस्मिल्लाह। कराची एमक्यूएम का शहर है और एमक्यूएम तो कराची में जीतेगी ही जीतेगी, अगर फेयर एंड फ्री अगर fair and- ना हुए तो ये तो आपका ख्याल है ना। अच्छा चलें। मैं इस वक्त ये पूछना चाह रहा था कि ओवरऑल इलेक्शन की सूरत हाल क्या है मुल्क में? अगर इलेक्शन हो जाता है तो केपी के स्ट्रेट अवे पीटीआई के पास चला जाएगा। पंजाब का जहाँ तक ताल्लुक है, धांधली के बावजूद पीटीआई जीतने नहीं देगी, मुश्किल है बहुत, चाहे जितनी मर्जी धांधली कर लें। जहाँ तक ताल्लुक बलूचिस्तान का है, उसके फैसले कहीं और होते हैं। बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो सर पीपल्स पार्टी को सिंध नहीं देंगे? अब हर दफ़ा तो नहीं ना सिंध देंगे, हम भी तो बैठे हैं हुजूर, हम भी तो राहों में बैठे हैं। इस दफ़ा ज़्यादा इम्कान यही है कि एमक्यूएम की पोजीशन ऐसी हो जानी है कि आपको हो सकता है चीफ मिनिस्ट्री एमक्यूएम को देनी पड़े, चाहे पीएमएलएन के साथ इल्हाक हो जाए, क्योंकि पीएमएलएन के साथ इनके इम्कानात हैं इकट्ठे लड़ने के इलेक्शन। तो जितनी सीटें इनकी होंगी ये तो डिक्टेट करेंगे फिर। लेकिन सर, इतनी तपस्या और इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा? हुक्म तो इन्होंने किसी और का ही मानना है। और भाई सारे ही मानते हैं, मैं अकेला क्या मानता हूँ, ओए सारे ही मानते हैं भाई। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ को ਜਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ऐसे बोली च बोलता था, मियाँ क्या हुक्म है जल्दी से बता दो। फिर मैंने दही लेने जाना मियाँ, दही नहीं लेने शाम डबल करवाऊंगा। अच्छा, दही में नून नहीं होता। मेरे अब्बू मैं अगे तो दही कहांगा। दही नहीं होता, तुमने अभी दही कहा है। दही 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 उर्दू बोल रहे हैं तो फिर उर्दू बोले ना। सर इन्होंने तो दिमाग की दही कर दी है। हाँ, दिमाग की दही कर दी। वैसे कमेंट बहुत अच्छा था फहद का कि आपने अगर किसी का हुक्म मानना था तो फिर इतनी मेहनत, इतनी रियाजत, इतना सारा सिलसिला, ट्रक तो वहीं का वहीं है। सर क्या करें, मजबूरी है, मानना पड़ता है, तो सारे ही मान रहे हैं। मजबूरी में किया हुआ मामला तो फिर ऐसे ही होता है। ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੋਟ ਬੰਬਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। कितने ਬੰਬਈ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਕੇ ਬੰਬਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। तो क्यों ਅਗਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਆ। सर नींद नहीं मेरी पूरी हो रही, पता नहीं की हो रहा है। खाना ठीक खा रहे हो? ਖਾਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ। नहीं, बस ये बहुत ज़्यादा खाता है, फिर इस वजह से भी नींद नहीं आती। ਸਰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। क्यों यार, इसका गैंडा सिफत इंसान। बहरहाल तुम्हारी बात मैं करूंगा डॉक्टर अफजल मल्ली से, वो कौन साहब ने? मेरे मेज़बान नहीं न्यूयॉर्क में। अच्छे डॉक्टर याद नहीं, मैंने कहा था स्लीप थेरेपिस्ट है। सुते रहंदे ने? कहता सुते रहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ नहीं स्लीप डॉक्टर ने? स्लीप स्पेशलिस्ट जो लोगों को सोने का तरीका बताते हैं। अच्छा, जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जो आपके जैसे लोग हैं, उनको हेल्प आउट। मैं फ़ोन पे तुम्हारी बात करवाऊंगा। नहीं आप मुझे साथ लेकर जाए अमेरिका, क्यों? वहाँ इलाज करवाऊंगा ना मैं। लाज? क्यों लाज करवाऊंगा तुम्हारा? मैं पागल हूँ? वो टेलीफोन पे बताएंगे, अच्छा नहीं लगता है ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜੂ। यार मैनू गल करन दे, मैं वाकई तेन सीरीयस कह रहा। और ये दोपहर के कभी 2 बज जाते हैं, कभी 1 बज जाता है। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਹੈ। बहुत नींदें निछावर कर चुके, अब चैन से सोना। ਵਾਹ कहानी ख़त्म पर आई है, मजनू मरने वाला है। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। मैं सब समझ रहा, शायरी विच भी तुसी कह रहे हो कि तू जावें ही जावें।